Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Governmental Guru. Let's compete. Today, I will discuss RTI Act 2005. It is updated version 2026. In this part, I will discuss Rule 1 to 4 and I explain Rule 1 to 4 very concisely, and also I will discuss 10 MCQs. So it is useful for different exams. You see NVS principal exam, KVS principal and VP vice principal exam, section officer and assistant register exam in NIT National Institute of Technology. So that for different exams actually it would be useful, and also both MCQs, and if you listen the explanation also easily you can attempt the descriptive questions. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. You see, join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. And my Telegram channel link is there, t.me/bapi2034, and second Telegram channel link t.me/asit2034. So join my channel so that you can get notification for my upcoming videos. But do not forget to subscribe my channel, and definitely you can get different exciting government rules. So now I am going to discuss RTI Act 2005 updated version, Rule 1 to 5. Rule 1 to 4. So Rule 1, you see, it is short title, extent and commencement. Always you remember the rule position. Actually, the act extends to the whole of India now. पहले जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक्चुअली आरटीआई एक्ट ये यूज नहीं हो रहा था, बट आफ्टर अक्टूबर 31 2019 जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया, तो उसमें अभी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए फुली एप्लीकेबल है आरटीआई एक्ट. So you see, the RTI Act applies across all Indian states and union territories. The Right to Information Act 2005 is now fully applicable. You see, is now fully applicable in the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, जो चेंज एक्चुअली टुक प्लेस ऑन अक्टूबर 31 2019, द इनैक्टमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसी के वजह से क्या हुआ, अभी फुल्ली एप्लीकेबल है यूनियन टेरिटोरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में. ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, और जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को रिमेंबर करना है. क्लियर? तो इसी रिलेटेड में क्वेश्चन आपको मिल सकता है. नेक्स्ट वन, रूल 2 में कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशंस के ऊपर क्वेश्चन आता है. जो रूल 2 उसका जो सबसेक्शन ई है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एक्सप्लेन किया है. याद रखिए, रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आरटीआई एक्ट का रूल 2, उसका जो सबसेक्शन ई में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एक्सप्लेन किया गया है. रूल पोजीशन को आपको याद रखना है. इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द स्पीकर इन द केस ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट और ए यूनियन टेरिटोरी हैविंग सच असेंबली. तो ऑनरेबल स्पीकर जो हाउस ऑफ द पीपल और द लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो यूनियन टेरिटोरी में असेंबली है उनका ऑनरेबल स्पीकर, एंड द चेयरमैन इन द केस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. काउंसिल ऑफ स्टेट्स में चेयरमैन और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो क्लियर. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, राइट. In the case of Supreme Court, Chief Justice of the High Court, the President or the Governor, as the case may be, in the case of other authorities established or constituted by or under the Constitution. Then the Administrator appointed under Article 239 of the Constitution. ये सब competent authorities है. Honorable Speaker, House of the People, Legislative Assembly, और जिस यूनियन टेरिटोरी में असेंबली है उनका स्पीकर, काउंसिल ऑफ स्टेट से चेयरमैन और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट. आप काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट का चेयरमैन, चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट और द ऑनरेबल गवर्नर, द केस में भी इन द केस ऑफ अदर अथॉरिटीज,
एस्टेब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और एडमिनिस्ट्रेटर जो आर्टिकल 239 अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दीज आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज डिफाइंड इन आरटीआई एक्ट 2005. क्लियर? नेक्स्ट वन यू सी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आरटीआई एप्लीकेंट उसको इंफॉर्मेशन चाहिए तो राइट टू इंफॉर्मेशन, अभी तो ईच एंड एवरी सिटीजन हैज राइट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन from the government departments or some organization actually aided by the government, or the public sector undertakings, autonomous bodies, or bodies controlled by the government, or those organizations or institutions actually government funding institutions. तो उसमें जो सिटीजन का राइट है वो कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है पब्लिक अथॉरिटी से. तो उसमें किस तरीके से, इन व्हाट वे एक्चुअली द सिटीजन कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी थ्रू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रूल पोजीशन याद रखिए. रूल पोजीशन है 2 सबसेक्शन एफ. अब देखिए उसमें इंफॉर्मेशन रूल पोजीशन को याद रखिए. इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, किस मटेरियल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं? records, documents, memos, emails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form, कोई भी डाटा मटेरियल है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी. ये लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है. इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी which can be assessed by a public authority under any other law for the time being in force. तो ये इंफॉर्मेशन इस तरीके से हम कलेक्ट करेंगे. रिकॉर्ड्स में, डॉक्यूमेंट्स में, मेमोज में, ईमेल्स में. ओपिनियंस एडवाइसेस भी है. अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कंफ्यूजन होते हैं. ओपिनियंस एडवाइसेस, ठीक है, ये बहुत रेयर है. और प्रेस रिलीजेस है, सर्कुलर्स है, ऑर्डर्स है, लॉगबुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स, मॉडल्स और डाटा मटेरियल्स हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. यदि कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए प्राइवेट बॉडी रिलेटेड, सपोज एनी इंफॉर्मेशन यू नीड रिलेटेड टू एनी प्राइवेट बॉडी, ऑल्सो इट कैन बी असेस्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ. ठीक है, तो लास्ट वन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है. ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएगा. सपोज इन व्हाट वे द इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड अंडर आरटीआई एक्ट 2005. क्लियर? तो बहुत इसमें रेयर है ओपिनियंस एडवाइसेस. और लास्ट वन, सपोज एनीवन वांट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइवेट बॉडी, ऑल्सो इट कैन बी असेस्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी. क्योंकि आरटीआई एप्लीकेंट तो पब्लिक अथॉरिटी को पूछेगा कि प्राइवेट बॉडी, सपोज कोई कॉन्ट्रैक्टर कोई पब्लिक बॉडी में, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, कोई प्राइवेट एजेंसी सपोज कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम कर रहा है और उसके ऊपर हम पूछ रहे हैं, तो आरटीआई एप्लीकेंट तो फर्स्ट पार्टी है, सेकंड पार्टी तो पब्लिक अथॉरिटी. हम पूछेंगे कि जो जिस इंस्टीट्यूशन का पब्लिक अथॉरिटी, उसको पूछेंगे कि आपका इंस्टीट्यूशन में ये जो प्राइवेट एजेंसी काम कर रहा है कि प्राइवेट बॉडी काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसके ऊपर हमको ये इंफॉर्मेशन चाहिए. तो वो तो थर्ड पार्टी हो गया, प्राइवेट बॉडी. तो वहां पर भी पब्लिक अथॉरिटी जो प्राइवेट एजेंसी की प्राइवेट बॉडी रिलेटेड वर्क है वो भी उसको असेस करेगा और आरटीआई एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करेगा. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था. नेक्स्ट वन, पब्लिक अथॉरिटी मीन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रूल 2H. पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी, एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड. तो आप देखिए पब्लिक अथॉरिटी में एनी अथॉरिटी आएगा, एनी पब्लिक बॉडी और एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट established or constituted by under the constitution, by the parliament, by the state legislature and by notification issued or order made by the appropriate government. तो ये जो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का रूल, पार्लियामेंट का रूल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का रूल और जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, उसमें हम पब्लिक अथॉरिटी को कैसे मानेंगे ना, एनी अथॉरिटी और कोई बॉडी है और कोई इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, established or constituted by
कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें बॉडी ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। जो भी बॉडी है इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। कुछ कुछ ऐसा बॉडीज है जो गवर्नमेंट उनको एड देता है। तो याद रखना है, बॉडी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड सम बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। और कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, पार्शियली फाइनेंस्ड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो इसको याद रखना है। तो उसमें दोज बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल्ड, मैनेज्ड एंड फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट और दोज बॉडीज पार्शियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। और नेक्स्ट वन जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओ है, उनको भी यदि गवर्नमेंट फंडिंग करता है वो भी आ जाएगा। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंडिंग प्रोवाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो ये सब आ जाएंगे पब्लिक अथॉरिटी में। ठीक है। तो आप रूल पोजीशन को देखिए, रूल 2 जो है डेफिनेशन रिलेटेड, उसका सबसेक्शन H पब्लिक अथॉरिटी को डिफाइन किया है। ठीक है। नेक्स्ट वन रिकॉर्ड्स देखेंगे। रिकॉर्ड्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? एनी डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट एंड फाइल, एनी माइक्रोफिल्म, एनी माइक्रोफिच, एनी फैसिमाइल कॉपी of a document, any reproduction of image or images embodied in such microfilm whether enlarged or not, any other material provided by a computer or by any other device। ये सब रिकॉर्ड में आएगा, चाहे डॉक्यूमेंट हो, चाहे कोई मैन्युस्क्रिप्ट हो, कोई फाइल हो, एनी माइक्रोफिल्म है कि माइक्रोफिच है कि फैसिमाइल कॉपी है, और कोई एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज है और इमेजेस है एम्बोडाइड इन सच माइक्रोफिल्म, और कोई भी मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर, ये सब रिकॉर्ड में आएगा। और इसको डिफाइन किया है जो आरटीआई एक्ट 2005। अब देखिए रूल 2 उसका सबसेक्शन I देखिए, ये रिकॉर्ड को डिफाइन किया है। रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट वन, अच्छा यहां पर दे दिया कि राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रूल पोजीशन को देखिए, रूल 2 सबसेक्शन J, राइट टू इंफॉर्मेशन को डिफाइन किया है। इट मीन्स द राइट टू इंफॉर्मेशन accessible अंडर दिस एक्ट which is held by or under the control of any public authority and includes the right of the applicant to। देखिए जो भी इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन में ये आता है जो भी इंफॉर्मेशन एक्चुअली हेल्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी, ओके, एंड इजीली इट कैन बी असेस्ड, those type of information accessible under the act which is held by or under the control। दो चीज है इसमें, held by और the control of any public authority। आप यहां पर मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, held by तो कॉमन है, under the control means सपोज कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन में एक प्राइवेट बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, एक प्राइवेट एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि कोई ऐसा गवर्नमेंट एजेंसी है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ठीक है। तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड वर्क हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम पब्लिक अथॉरिटी को पूछेंगे। आरटीआई एप्लीकेंट फर्स्ट पार्टी है, सेकंड पार्टी क्या है? पब्लिक अथॉरिटी। अच्छा, आरटीआई एप्लीकेंट किसके ऊपर पूछ रहा है? ना जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क चल रहा है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क है जो एजेंसी लिया है कि कोई बॉडी लिया है, वो थर्ड पार्टी हो गया। तो किसका अंडर में है? वो पब्लिक अथॉरिटी का कंट्रोल में है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन में वो काम कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन में वो कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है। ठीक है कि नहीं? तो आपको याद रखना है, जो इंफॉर्मेशन accessible under this act which is held by or under the control of any public authority and includes क्या आएगा? जो राइट ऑफ द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट का जो क्या क्या राइट है? इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, वर्क को इंस्पेक्ट कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल, सैंपल भी ले सकता है। सपोज आप देखेंगे कि कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन में एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मगर उसमें जो सैंड है कि ब्रिक है
कि जो एनी अदर जो इनपुट्स यूज होता है, चाहे रॉड है, आप उसका सैंपल देखना चाहते हो, वो भी देख सकते हो आप, टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल। अच्छा, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो किस फॉर्म में, डिस्केट्स, फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियो कैसेट्स, और इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, और थ्रू प्रिंटआउट्स वेयर सच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर और इन एनी अदर डिवाइस। ये सभी आ जाता है। तो जो अप्लीकेंट का राइट है, तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में क्लियरली मेंशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि जो भी इंफॉर्मेशन असेसिबल है और हेल्ड बाय द अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी, उनके पास डायरेक्टली है, और कंट्रोल अंडर पब्लिक अथॉरिटी। मैं कंट्रोल अंडर में एक एग्जांपल दिया। तो जो अप्लीकेंट वो कोई भी वर्क को इंस्पेक्ट कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स और एनी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो ले सकता है, कोई सैंपल ऑफ मटेरियल्स उसको भी सर्टिफाई कर सकता है जाकर, जो जो सैंपल्स यूज होता है, जो जो रॉ मटेरियल्स यूज होता है, उसको भी वो उसका सैंपल चेक कर सकता है। डिस्केट्स, फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियो कैसेट्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है और प्रिंट आउट ले सकता है। ठीक है, तो ये आता है डेफिनेशन राइट टू इंफॉर्मेशन में, और उसका जो रूल पोजीशन है रूल 2 सबसेक्शन जे, क्योंकि रूल 2 तो डेफिनेशन है, उसका सबसेक्शन जे देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वन थोड़ा थर्ड पार्टी के ऊपर बोलेंगे। थर्ड पार्टी मीन्स डेफिनेशन में पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग ए रिक्वेस्ट, ए पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूड्स ए पब्लिक अथॉरिटी। तो उसमें देखिए, इसमें जो थर्ड पार्टी का डेफिनेशन बोला है कि पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग ए रिक्वेस्ट। अच्छा, सिटीजन मेकिंग ए रिक्वेस्ट मींस आरटीआई एप्लीकेंट, आप रिक्वेस्ट करते हो। ठीक है, सपोज आप रिक्वेस्ट करते हो कि एक एग्जांपल मैं देता हूं। सपोज पर्सन ए वो रिक्वेस्ट करता है कि पब्लिक अथॉरिटी को कि मुझे राम का रिक्रूटमेंट जो राम का हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, उसका डिटेल क्वालिफिकेशन चाहिए। उसका जो रिक्रूटमेंट हुआ उसका क्या क्वालिफिकेशन है। तो यहां पर आप जो आरटीआई एप्लीकेंट जो मांग रहा है वो फर्स्ट पार्टी है। किसको मांग रहा है? पब्लिक अथॉरिटी को मांग रहा है, वो सेकंड पार्टी है। और किसके ऊपर मांग रहा है? कि जो राम का रिक्रूटमेंट हुआ है उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन उसका था। तो वो राम हो गया थर्ड पार्टी। ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो थर्ड पार्टी मीन्स ए पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग ए, तो सिटीजन मेकिंग ए रिक्वेस्ट मीन्स भाई आरटीआई एप्लीकेंट है। और हम मेरा एग्जांपल में जैसे मैं राम का एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मुझे चाहिए, मैं पब्लिक अथॉरिटी को पूछ रहा हूं, तो राम का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर मैं पूछ रहा हूं मीन्स राम थर्ड पार्टी है। तो पब्लिक अथॉरिटी को पूछ रहा हूं मीन्स वो सेकंड पार्टी है। और मैं जो आरटीआई डाला कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं फर्स्ट पार्टी हूं। तो वही है थर्ड पार्टी मीन्स सेक्शन, ये बहुत सेक्शन देख लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। रूल पोजीशन रूल 2 सबसेक्शन एन में थर्ड पार्टी को डिफाइन किया गया है। ये थर्ड पार्टी मीन्स एनी पर्सन अदर देन द सिटीजन हु हैज फाइल्ड द आरटीआई एप्लीकेशन। जो सिटीजन आरटीआई एप्लीकेशन फाइल किया है वो तो फर्स्ट पार्टी है, और जिस पर्सन के ऊपर उसको इंफॉर्मेशन चाहिए वो थर्ड पार्टी है। ठीक है कि नहीं? और वो किससे मांग रहा है, किससे इंफॉर्मेशन लेगा? पब्लिक अथॉरिटी से, तो पब्लिक अथॉरिटी सेकंड पार्टी है। अच्छा, थर्ड पार्टी पब्लिक अथॉरिटी भी हो सकता है, थर्ड पार्टी पब्लिक अथॉरिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देखिए, मैं एग्जांपल में मैं दे चुका हूं। एक when the RTI Act says that third party includes a public authority, a government department, office or authority can also be a third party if the information sought relates to it and it is not the RTI applicant. तो यहां पर भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, क्लियर एग्जाम्पल आप देख लीजिए। सिचुएशन है, ए सिटीजन फाइल्स an RTI application to a department A asking for copies of correspondence received from department B, copies of correspondence received from department B। अब देखिए, एक सिटीजन वो आरटीआई एप्लीकेशन फाइल किया डिपार्टमेंट ए में, और उसको क्या क्या चाहिए इंफॉर्मेशन ना, जो कॉपीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस
डिपार्टमेंट बी से चाहिए, वो डिपार्टमेंट ए को मांग रहा है। सिटीजन डिपार्टमेंट ए को मांग रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए, सिटीजन डिपार्टमेंट ए को मांग रहा है कि मुझे कॉपीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस किसका चाहिए, डिपार्टमेंट बी का। तो सिटीजन हो गया फर्स्ट पार्टी, डिपार्टमेंट ए का पब्लिक अथॉरिटी हो गया सेकंड पार्टी, और थर्ड पार्टी है डिपार्टमेंट बी से, उसको इन कॉपीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस चाहिए, तो डिपार्टमेंट बी हो गया थर्ड पार्टी। अभी क्लियर? तो यहां पर जो डिपार्टमेंट बी है वो पब्लिक अथॉरिटी है, तो थर्ड पार्टी पब्लिक अथॉरिटी भी हो सकता है, ठीक नहीं? क्योंकि सिटीजन डिपार्टमेंट ए को मांग रहा है कि मुझे कॉपीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस चाहिए डिपार्टमेंट बी का, जो भी कॉपीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस बी को किया गया है वो कॉपीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस मुझे चाहिए। तो सिटीजन तो हो गया फर्स्ट पार्टी, तो हम डिपार्टमेंट ए को मांग रहे हैं, तो उसका पब्लिक अथॉरिटी हो गया सेकंड पार्टी, जो उसका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। और हम जो सिटीजन का डिमांड क्या है, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए उसको ना, जो भी कॉपीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है डिपार्टमेंट बी के साथ, वो सब कॉपीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहां पर थर्ड पार्टी क्या हो गया, डिपार्टमेंट बी। तो जो थर्ड पार्टी है वो भी पब्लिक अथॉरिटी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सिटीजन आरटीआई एप्लीकेंट फर्स्ट पार्टी हो गया, डिपार्टमेंट ए से इंफॉर्मेशन चाहिए तो सेकंड पार्टी है आरटीआई अथॉरिटी, और डिपार्टमेंट बी से इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम डिपार्टमेंट ए को मांग रहे हैं कि जो भी कॉपीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है डिपार्टमेंट बी के साथ वो चाहिए, तो डिपार्टमेंट बी हो गया थर्ड पार्टी। तो डिपार्टमेंट होने से भी पब्लिक अथॉरिटी भी थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें एग्जाम्पल दिया थर्ड पार्टी का, ठीक है। तो थर्ड पार्टी जो आरटीआई एप्लीकेंट सभी समय फर्स्ट पार्टी होता है, वो आरटीआई फाइल करता है। पब्लिक अथॉरिटी जो सेकंड पार्टी है, थर्ड पार्टी हम और कोई पर्सन के ऊपर हमको डाटा चाहिए, वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। रूल 3 जो है, रूल पोजीशन याद रखिए, रूल 3, राइट टू इंफॉर्मेशन। ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन। सभी सिटीजन को चाहिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। सपोज कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, कोई भी पब्लिक बॉडी है, ठीक है, कोई भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फंडेड बाय द गवर्नमेंट, और कोई भी बॉडी पार्शियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, कोई भी बॉडी एडेड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर? तो ऑल सिटीजन हैविंग द राइट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ये रूल 3 है। रूल 4 जो है, ओब्लिगेशंस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 4 के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ओब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, रूल पोजीशन याद रखिए, पब्लिक अथॉरिटी का क्या ओब्लिगेशंस है, ठीक है। तो उसका रोल क्या है पब्लिक अथॉरिटीज का, तो वो है रूल 4, आरटीआई एक्ट 2005 का रूल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट है द लाइब्रेरी रूल, कैटलॉग्ड एंड इंडेक्स्ड। तो पब्लिक अथॉरिटी का मेन रोल है, वो सभी फाइल्स को कैटलॉग के आकार में रखेगा और इंडेक्स के आकार में रखेगा, तो इजीली वो एक्सेसिबल हो सकता है। तो उसका मेन रोल है, वो पब्लिक अथॉरिटीज कैन नॉट जस्ट कीप मेसी फाइल्स को इधर उधर ऐसे करके नहीं रखेगा, वो कैटलॉग में रखेगा और उसको इंडेक्स करके रखेगा, इंडेक्स नंबर डाल के रखेगा, तो इजीली, वेरी सडनली, हास्टेनली ऑल्सो इट कैन बी असेस्ड, डॉक्यूमेंट्स कैन बी असेस्ड। सो दे मस्ट ऑर्गेनाइज देम। ऑर्गेनाइज मीन्स कैटलॉग। आप लाइब्रेरी में देखा होगा, आप लाइब्रेरी में जाइए, कोई बुक चाहिए तो कैटलॉग है, कैटलॉग देख लीजिए, कैटलॉग देख के आप जाकर वो सेल्फ से इजीली आप बुक को कलेक्ट कर सकते हैं। एंड क्रिएट ए सर्चेबल लिस्ट इंडेक्स, ठीक है। तो फर्स्ट ये पब्लिक अथॉरिटी का रोल है, कैटलॉग एंड इंडेक्स। सेकेंड, इसका गोल क्या है, मेन कैटलॉग इंडेक्स क्यों करते हैं, क्योंकि इजीली वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं और टाइमली विद इन स्टिपुलेटेड टाइम हम जो आरटीआई एप्लीकेंट है, जो सिटीजन एक्चुअली आरटीआई, इट मीन्स जो सिटीजन को इंफॉर्मेशन चाहिए उसको हम स्टिपुलेट टाइम के अंदर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है, वही है गोल। तब डिजिटल शिफ्ट, कंप्यूटराइज्ड सेकेंड है। द लॉ रिकॉग्नाइजेस दैट पेपर फाइल्स आर स्लो एंड प्रोन टू डैमेज। जो पेपर फाइल्स है उसका वर्क बहुत स्लो है और डैमेज भी हो सकता है, तो इसलिए क्या है ना, डिजिटल शिफ्ट, जो भी हम रखेंगे अभी उसको कंप्यूटराइज करके हम रखेंगे कैटलॉग और इंडेक्स फॉर्म में। द मैंडेट, एनीथिंग दैट कैन बी पुट ऑन ए कंप्यूटर शुड बी। अच्छा, इसमें क्या कैविट्स में क्या बोला कि विद इन ए रीजनेबल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। कभी कभी क्या है, जितना रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्स नहीं है, तो उसको कैसे हम कंप्यूटराइज करेंगे। मगर उसमें दो चीज बोला
कि विद इन ए रीजनेबल टाइम और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। यदि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है उसको रीजनेबल टाइम के अंदर हम कंप्यूटराइज कर देंगे तो बेटर है, क्योंकि पेपर फाइल में करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और वो डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, मगर यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि जो कंप्यूटराइज करेंगे, जो डिजिटल शिफ्ट करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। यदि रिसोर्सेज है हम कर सकते हैं, यदि रिसोर्सेज नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा? ये तो नहीं किया जाएगा इतना जल्दी। तो जो कंप्यूटराइज होगा, जो शिफ्टिंग होगा, डिजिटल शिफ्ट होगा, वो मेनली उसका मेन डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और नेक्स्ट है द नेशनल वेब कनेक्टेड थ्रू ए नेटवर्क। इसको ऐसे रखा जाएगा कि इट कैन बी इजीली असेस्ड अक्रॉस द कंट्री। कोई भी इट मींस जगह में उसको हम असेस कर सकते हैं। तो इट इज नॉट एनफ फॉर एन ऑफिस इन दिल्ली टू हैव ए डिजिटल फाइल इफ समवन इन केरला कैन नॉट सी इट। यदि न्यू दिल्ली में उसको डिजिटल फाइल किया गया है, केरला में भी उसको देख सकते हैं कोई इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो डिजिटल फाइल है ऑलरेडी। तो मैंडेट द सिस्टम शुड बी लिंक्ड अक्रॉस द कंट्री। Goal to create a seamless interconnected database so that access is facilitated regardless of whether the citizen or the record is physically located। तो ये थर्ड है, ये भी पब्लिक अथॉरिटी का ऑब्लिगेशन है कि वो नेशनल वेब से कंप्यूटराइज किया जाएगा, उसको कंप्यूटराइजली कैटलॉग किया जाएगा, इंडेक्स किया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, डैमेज होने का चांस नहीं है, कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मगर कंप्यूटराइज होने के लिए थोड़ा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, और हम ऐसे उसको अरेंज करके रखेंगे, ऑर्गेनाइज करके रखेंगे जैसे इट कैन बी असेस्ड अक्रॉस द कंट्री। आप न्यू दिल्ली में सपोज, यहां पर एक एग्जांपल मैं बताता हूं। सपोज न्यू दिल्ली में एक पर्सन का सुपरएनुएशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, उसका घर, सपोज उसका जो रेसिडेंशियल प्लेस है वो केरला में है, वो केरला चला गया, सुपरएनुएशन हो गया दिल्ली में, वो केरला चला गया, मगर उसी रिटायरमेंट रिलेटेड में कुछ इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, तो वो वही केरला में उसका जो ऑफिस का ब्रांच है वो वहां पर जाएगा और इजीली एक्सेस कर सकता है। मगर उसका दिल्ली में रिटायरमेंट हुआ, मगर अभी वो उसका घर केरला में है, तो उसको रिटायरमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ऑफिस को जाएगा और उसको कलेक्ट कर सकता है डिजिटली, बिकॉज नाउ इट इज इंटरकनेक्टेड वन, इट इज सीमलेस वन, एनीवेयर एल्स आल्सो वी कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सब ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्लिगेशंस ऑफ, जो रूल 4 बोलता है। ओके, रूल 4, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। रूल 4 है आरटीआई एक्ट 2005 का। ठीक है, तो कैटलॉग इंडेक्स, डिजिटल शिफ्ट और नेशनल वेब जो कनेक्टेड थ्रू ए नेटवर्क। नेक्स्ट वन मैं बोला था रूल 1 to 4 में डिस्कस करूंगा, देन पार्ट 2 में फिर मैं रूल 5 से डिस्कस करूंगा। मैं बोला था कि 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे यहां पर। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिलेटेड क्वेश्चन है। अंडर द आरटीआई एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस है। फॉर ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज द स्पीकर, करेक्ट है। फॉर अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन other than legislatures courts the president or the governor is the competent authority, करेक्ट है। तो इसमें सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैं बोला था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, कि हाउस ऑफ द पीपुल है, वहां पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्पीकर है, ऑनरेबल स्पीकर है, और काउंसिल ऑफ द स्टेट्स इसमें द चेयरमैन। ओके, और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, और अदर देन लेजिस्लेचर्स और कोर्ट्स देन कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज आर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट और द गवर्नर। मैं बोला था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का डेफिनेशन में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट वन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेफिनेशन इंफॉर्मेशन रिलेटेड, इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड। इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूं अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। Information includes data material related to a private body if it can be accessed by a public authority or any other law। मैं बताया था, सपोज इंफॉर्मेशन चाहिए कोई प्राइवेट बॉडी के ऊपर, तो पब्लिक अथॉरिटी एक्सेस कर सकता है। जैसे कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन में एक प्राइवेट एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है, और आरटीआई एप्लीकेंट पूछ रहा है पब्लिक अथॉरिटी को कि आपका इंस्टीट्यूशन में वो कॉन्ट्रैक्टर, वो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है और उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो पब्लिक अथॉरिटी अंडर में वो है, अंडर कंट्रोल में है, तो पब्लिक अथॉरिटी उसके ऊपर इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है,
और सेकेंड वन ए रिकॉर्ड. A record only includes physical paper documents and manuscripts excluding digital. ये गलत है. अभी कोई भी रिकॉर्ड, चाहे मैन्युस्क्रिप्ट हो, चाहे रिकॉर्ड्स हो, चाहे पेपर्स हो, चाहे इंफॉर्मेशन हो, चाहे एडवाइस हो, सभी में आएगा. चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, कंप्यूटराइज फॉर्म में हो, सब कुछ आएगा. ठीक है. तो मगर यहां पर एक्सक्लूडिंग डिजिटल इमेजेस और माइक्रोफिल्म ये नहीं है. रिकॉर्ड का डेफिनेशन में बताया था. तो उसमें करेक्ट पूछा है स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट मीन्स ओनली वन. तो ऑप्शन ए इज द ओनली ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा, as per the RTI Act, a public authority includes which of the following? Public authority इसमें includes which of the body owned or controlled by the government? करेक्ट है. A non-government organization substantially financed by the government? करेक्ट है. And institution established by notification issued by appropriate government? करेक्ट है. तीनों करेक्ट है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. आप पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन देख लीजिए. ठीक है. तो उसमें क्लियरली मेंशन है, इट मींस बॉडी ओन्ड कंट्रोल्ड और फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, बॉडी सपोज सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फंडेड बाय द गवर्नमेंट, और एनी इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय नोटिफिकेशन इशूड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. सब पब्लिक अथॉरिटी में इंक्लूड है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. द राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट स्पेसिफिकली ग्रांट्स ए सिटीजन द राइट टू. अच्छा, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसमें क्लियरली क्या क्या मेंशन है, क्या सिटीजन का क्या राइट है, वो किस तरीके का इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है. जैसे इंस्पेक्ट वर्क डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, करेक्ट है. टेक सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल, करेक्ट है. ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक मोड्स लाइक डिस्केट्स और प्रिंटआउट्स, करेक्ट है. ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ द अबव एक्चुअली इज द करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ द अबव होगा. वो वर्क इंस्पेक्ट कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है, रिकॉर्ड्स इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई मटेरियल का सैंपल चेक कर सर्टिफाई कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है. तो ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. रिगार्डिंग द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द आरटीआई एक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. Incorrect है. It has been fully applicable to the UTs of Jammu and Kashmir and Ladakh since October 31, 2019. ये correct है. It only applies to union territories and not to the states. No, गलत है. It applies only to the central government offices in New Delhi. तो देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आपको मैं बोला था पहले जम्मू एंड कश्मीर के लिए आरटीआई एक्ट एप्लीकेबल नहीं था, मगर जब जो अक्टूबर 31, 2019 जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया उसमें जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को यूनियन टेरिटोरीज में डिक्लेयर कर दिया गया, तो अभी आरटीआई एक्ट फुल्ली एप्लीकेबल है. ठीक है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. अंडर द आरटीआई एक्ट हु इज डिफाइंड एज थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी को कैसे डिफाइन करेंगे? रूल 2(n) में डिस्कस किया था. एनी पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग द रिक्वेस्ट, ओनली अनदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ओनली फॉरेन नेशनल्स, a person other than the citizen making the request including a public authority. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ए पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग रिक्वेस्ट ये फर्स्ट पार्टी है, ये आरटीआई एप्लीकेंट है, ये आरटीआई एप्लीकेंट है, एपीपी में लिख दिया, ये फर्स्ट पार्टी है. अच्छा, जिसको हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी को, वो सेकंड पार्टी है, और किस पर्सन के ऊपर मांग रहे हैं वो थर्ड पार्टी है. और इसमें थर्ड पार्टी पब्लिक अथॉरिटी भी हो सकता है, क्योंकि सपोज मैं आरटीआई एप्लीकेंट हूं, मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को मैं मांग रहा हूं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, सपोज कुछ हेल्थ फैसिलिटीज स्टूडेंट्स के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस दिया है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट को कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस किया है. ठीक है. हेल्थ डिपार्टमेंट को वो नोट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस मुझे चाहिए, तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को पूछ रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पार्टी हूं. मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, सेकंड पार्टी है. मगर मुझे किससे इंफॉर्मेशन चाहिए? हेल्थ डिपार्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट जो है थर्ड पार्टी है. ठीक है. क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट मुझे कुछ नोट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस हेल्थ डिपार्टमेंट से चाहिए,
क्योंकि क्या है, बच्चों को क्या क्या हेल्थ फैसिलिटीज दिया गया है कि कुछ ऐसा कुछ न्यू इनिशिएटिव्स लिया गया है बच्चों का जो फिजिकल मेंटल फिटनेस के लिए, वो नोट्स ऑफ करेस्पॉन्डेंस मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट से चाहिए, मगर मैं डायरेक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट को नहीं पूछ रहा हूं, मुझे इंफॉर्मेशन मैं मांग रहा हूं किससे, पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वो सेकंड पार्टी हो गया, और मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तो पब्लिक अथॉरिटी हो गया ना, तो वो थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी पब्लिक अथॉरिटी हो सकता है। तो यहां पर जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्लिगेशन ऑफ ए पब्लिक अथॉरिटी रिगार्डिंग रिकॉर्ड मैनेजमेंट। रिकॉर्ड मैनेजमेंट में मैं बताया था पब्लिक अथॉरिटी, आप रूल 4 देखिए, ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, कैटलॉग इंडेक्स फॉर्म में वो ऑर्गेनाइज करेगा डॉक्यूमेंट्स को, सेकेंड है डिजिटली शिफ्ट करेगा, थर्ड वन है जैसे उसको इजीली असेसेबल अक्रॉस द कंट्री। तो वही है, टू डिस्ट्रॉय ऑल रिकॉर्ड्स अदर देन 10 years टू सेव स्पेस, टू कीप ऑल रिकॉर्ड्स इन ए सीक्रेट लोकेशन फॉर सिक्योरिटी, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स इन ए कैटलॉग्ड एंड इंडेक्स्ड मैनर टू फैसिलिटेट द राइट टू इंफॉर्मेशन, to digitize every single document immediately regardless of cost or resources। एक्चुअली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डी में वो बोला है डिजिटली एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट इमीडिएटली रिगार्डलेस ऑफ कॉस्ट, नहीं रिसोर्स चाहिए। यदि वो बोल रहा है कि जब डिजिटली शिफ्ट होगा, जब रिसोर्सेस अवेलेबल है, यदि रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है कैसे डिजिटली शिफ्ट होगा, तो यहां पर दे दिया है रिगार्डलेस, तो ये गलत है, ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं बोला था डिजिटली शिफ्ट के लिए मेन थिंग चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स बाय पब्लिक अथॉरिटी। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, ऑल रिकॉर्ड्स मस्ट बी कंप्यूटराइज्ड इमीडिएटली रिगार्डलेस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, गलत है। रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी देख के कंप्यूटराइज किया जाएगा, यदि रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है तो तब कैसे कंप्यूटराइज किया जाएगा। यहां पर रिगार्डलेस पूछा है, ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड्स मस्ट बी कैटलॉग्ड एंड इंडेक्स्ड स्पेसिफिकली टू फैसिलिटेट द राइट टू इंफॉर्मेशन, करेक्ट है। डिजिटल रिकॉर्ड शुड बी कनेक्टेड थ्रू ए नेटवर्क ऑल ओवर द कंट्री टू फैसिलिटेट एक्सेस, करेक्ट है। तो करेक्ट पूछा है मींस 2 and 3, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, डज इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट इंक्लूड डाटा रिलेटिंग टू ए प्राइवेट बॉडी। मैं बताया था, जो इंफॉर्मेशन डेफिनेशन आप देखिए उसमें क्लियरली मेंशन था कि कोई प्राइवेट बॉडी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, हम कलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, कलेक्ट कर सकते हैं प्राइवेट रिलेटेड बॉडी इंफॉर्मेशन। ओके, डाटा हम चाहिए, प्राइवेट बॉडी रिलेटेड डाटा चाहिए, तो पब्लिक अथॉरिटी को हम मांगेंगे, पब्लिक अथॉरिटी उसको असेस करेगा और हमको इंफॉर्मेशन देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नो, इट ओनली कवर्स पब्लिक गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, एस प्रोवाइडेड इट कैन बी असेस्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ। यही क्वेश्चन करेक्ट होगा। एस ऑल प्राइवेट डाटा इज असेसेबल अंडर आरटीआई ओनली इफ द प्राइवेट बॉडी गिव्स रिटन कंसेंट, ऐसा नहीं है। एस प्रोवाइडेड इट कैन बी असेस्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ। ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, the obligation to computerize records under the RTI Act is subject to which of the following conditions। अच्छा, जो डिजिटल शिफ्ट होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, द एज ऑफ द रिकॉर्ड बीइंग लेस देन 10 years, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, द अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ए रिक्वेस्ट फ्रॉम एटलीस्ट 10 citizens। एक्चुअली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, यदि रिसोर्सेस अवेलेबल है तब इजीली हम डिजिटली शिफ्ट कर सकते हैं, यदि उतना रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है तो कैसे पूरा 100% डिजिटल शिफ्ट कैसे होगा। तो मेन कंडीशन है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो आज मेरा जो ये वीडियो था आरटीआई एक्ट का फर्स्ट पार्ट था, रूल 1 to 4 था, और उसमें 10 एमसीक्यूज में डिस्कस किया। तो दोनों साइड आपको हेल्प करेगा, एमसीक्यूज में हेल्प करेगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यदि आता है जैसे ओब्लिगेशन टू पब्लिक अथॉरिटीज की डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन की रिकॉर्ड्स क्या क्या रिकॉर्ड्स में इंक्लूड है, कि राइट टू इंफॉर्मेशन मीनिंग क्या है, कि थर्ड पार्टी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पब्लिक अथॉरिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है, इस तरीके का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो आप आराम से लिख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। और 10 एमसीक्यूज अच्छा, जो रिसेंट टाइम, दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली
coming nowadays. Those type of questions actually set by the different it means institution for examination. उस तरीका का लेटेस्ट क्वेश्चन पैटर्न को मैं डिस्कस किया। ठीक है, तो आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।